All right, I will take some time to admit the students, huh? So just stay there. As soon as I'll feel that sufficient number of students are there and nobody else is actually trying to enter, I will start, huh? So it may take maybe a couple of minutes. So just be there. All right, I'm still actually waiting for some more students to join in so that I can just complete whatever I'm teaching. So just be there. I'll be starting soon. Okay, all right. So I guess जितने आने थे लोग वो आ चुके हुए हैं. So tomorrow is I think obviously the last day before the winter holidays. So I will be covering this chapter as well by tomorrow as well. So then, and I told you what would be our plan. Then we'll be completing the syllabus soon after January, and then we'll actually start doing past papers as well. Okay, so let's now discuss it so that I'll complete what I planned earlier so that we can complete the chapter in the next class as well. Okay, now administration overheads. So warehouse, you understand that selling and distribution overhead. What is it? Like for example, you have a selling and distribution department. So you have the goods and you have to distribute it to the areas from where people can buy. Let's say retail outlets. So for that, you need to keep it in a warehouse and you have to pay rent of the warehouse as well. So this is again a fixed cost. But why it's not the same as production overhead? Because this is the rent of the factory where goods are produced, and this is the rent of the warehouse where the goods are kept so that they can be distributed to the area from where people can buy, right? Similarly, distribution is there as well. So you have to buy, let's say, take vehicles on rent, and you have to pay a rent of that vehicle as well. And doesn't matter how many goods you deliver or you actually take through that vehicle, still you have to pay that amount. That is a fixed amount. And so again, that is a overhead involved there. Similarly, administration overhead is there. So you have people who like office rent is there because you have an office, and interest on loan because you might have to borrow money from the bank as well uh, to run your business activity. Or similarly, so you this is actually the fixed cost or the salaries of the workers, who are overall in charge of the administration, right? Because they have nothing to do with the output. They will get their salaries every month the same way. The same amount will be transferred to their account. So that is again the salary of the administration staff is also a fixed cost on overheads. So fixed cost is there, then unit cost, you understand this as well. Unit cost is the cost of producing one item.
Okay, unit cost, you know, and the formula to calculate is, you know, because you did AS as well. So total cost divided by output. So we'll actually get the cost of producing one unit as well. All right. Now you need to understand, now one of the method of allocating cost to different cost centers and to different profit centers is full costing. Remember, okay, this is one, and there is another. Then there is another method as well. We will talk about it maybe in the next class. Today I will just talk about this, and we'll just end the lesson now. So full, why it is called full costing? Let me explain you. Because you know that it's easy to allocate variable cost. Like for example, you manufacture furniture, so you know that how much wood is involved in making one table or chair, right? So it's easy to allocate it, huh, right? But what about fixed cost? That is what we call overhead. We just discussed it. Overhead is a total cost, no? Rent of the building, for example, where you manufacture furniture, right? How can you allocate rent to each of the table being manufactured or each of the chair being manufactured, right? That is the difficult part. You cannot do it either to actually allocate it on equal level, equal basis, or maybe some other basis should be used. That is, but you have to allocate full the fixed cost as well. That is why we call it full costing, because in the other method all costs are not allocated. Like because of this the feature fixed cost is having, it is difficult to allocate fixed cost to each of the product, or each of the cost center, or each of the profit center, because it is difficult. That's why in some of the methods, fixed cost is not allocated to cost centers and profit centers. So yes, it is sometimes it is considered that it is not a good method, but it happens. But in full costing, that is the advantage, that all of the cost is allocated, fixed plus variable. So again, it is difficult that, again for the same reason, that how fixed cost will be allocated to each of the cost center and profit center. For that, we require a certain basis, and we are going to discuss that as well in this, how to allocate fixed cost as well. Let's see. I'll show you an example as well. Now, what do we do? Apportioning all direct material and labor and indirect cost overheads to each product. Because generally, if I talk about a factory or a manufacturing concern, generally direct costs are variable costs, and they are material and labor. Like material is raw material, na? So obviously it is a variable cost. So the more you produce, the higher will be your cost of material. Same is the case with labor as well. For example, labor is given per piece, or we call it piece rate. So again, labor could be the variable cost. Now, so all variable costs, they are generally direct cost. And why we call it direct cost? Because they can directly be associated with each product. So that's why it's easy to allocate them. All variable costs, they are generally direct costs, and direct costs can easily be associated with the product. I told you earlier how much wood is involved in manufacturing one table. This is easy to identify. So it's easy to allocate to any of the cost center or profit center. But apart from that, indirect cost, that is overhead, because generally overheads are also called indirect cost. Okay, and why they are called indirect? Because they cannot be associated with one of the product, because of the same feature, that it is a fixed cost and it is in total, and you cannot actually allocate it specifically with each of the product profit center or cost center, right? So but we allocate that as well. And when we allocate fixed cost and variable cost to each product, this process is called apportioning. Remember, this process is called apportioning, यानी कि हम किस हिसाब से किस प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर पे कितनी कॉस्ट डाल रहे हैं, including the direct variable cost and the indirect fixed cost as well. So we call it apportioning. Okay, total overhead is divided between products and cost centers on the basis of the proportion of total direct labor cost. So I told you कि fixed cost को allocate करने के लिए हमें एक basis चाहिए. तो एक basis तो ये है कि आप total direct labor cost की basis पे total overhead को भी apportion कर दें. Apportion मतलब उसको charge कर दें, allocate कर दें उन प्रॉफिट सेंटर्स को और कॉस्ट सेंटर्स को. अच्छा, वो कैसे? वो अब हम देखने लगे हैं कि अभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, यानी कि जिस तरह लेबर कॉस्ट लग रही है ना हर प्रोडक्ट पे, क्योंकि लेबर कॉस्ट एक डायरेक्ट कॉस्ट है ना, वो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर कॉस्ट पे, हर कॉस्ट सेंटर पे या प्रॉफिट सेंटर पे या प्रोडक्ट पे कितनी लग रही है. तो उसी बेसिस पे आप सेम परसेंटेज ओवरहेड की भी अप्लाई कर दें. तो हमारे पास
फुल कॉस्टिंग मेथड के थ्रू कॉस्ट पता चल जाएगी ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये कैलकुलेशन का सवाल आ सकता है ना आपको ये। अब मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम इसी एग्जांपल पे ही खत्म करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जो कि टुमारो है। लेट्स से आपके पास टोटल ओवरहेड है, दैट इज $200,000। ये टोटल दिया ना, आपको पता है ओवरहेड तो टोटली दी होती है ना, वो किसी एक कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर की नहीं होती। मैं ना प्रोडक्ट का जिक्र नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं कर रहा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी थॉरली डिस्कस कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स, तो मैं अब इन्हीं का नाम लूंगा, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, राइट। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ना वो दी हुई है $2,20,000, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, लेट्स से देयर आर टू प्रोडक्ट्स, पंप एंड फैन, which which are produced by the business, हाँ। तो अब डायरेक्ट मटेरियल हमने, ये चूंकि डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है ये हम एलोकेट कर सकते हैं हर एक पे, तो हमने कर दिया कि पंप पे डायरेक्ट कॉस्ट लगती है $100,000, फैन पे लगती है $150,000, ये पेपर में दिया होगा आपको। डायरेक्ट लेबर ये भी हम डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये पंप और फैन दोनों क्या है, ये पंप और फैन दोनों प्रॉफिट सेंटर है ना, क्योंकि पंप और फैन पे कॉस्ट भी लगती है, और पंप और फैन जो है ना वो रेवेन्यू भी जनरेट करके देते हैं। पर फिलहाल हम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट की बात ही करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल पे 1,50,000 लग रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रही है पंप पे, और 70,000 फैन पे लग रही है, ठीक है। तो अपोर्शनिंग अब हमने करनी है ओवरहेड की, वो देखो हम कैसे कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लेट मी इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ ताकि आसानी हो जाए। पेंट में यहाँ पर आया नहीं, अच्छा मैं देखूँ कि क्यों नहीं आया, ये शायद मैंने कॉपी सही नहीं किया। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है। अब मैं यहाँ से ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दोनों, ये फैक्ट भी मुझे लेना है वहाँ पर, ताकि आपको मैं बता सकूँ। और उसके बाद बस यही पार्ट है जो हमें करना है आज। ये मैंने, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। मैं ये देखिए ये मौजूद है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं इसको आगे नहीं चला रहा, हम इसी को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये जो ओवरहेड हमने, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ओवरहेड को हमने कैसे अपोर्शन किया। मैंने बताया अपोर्शन करने का मतलब है कि फिक्स कॉस्ट को चार्ज करना टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स। ये जो हमने अपोर्शन की है, पंप को फिक्स कॉस्ट, ये ओवरहेड, और फैन को कैसे की है, वो इस तरह से कि हमने पहले टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमें दी हुई है ना, हम पहले देखेंगे टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी पंप पे लग रही है, कितनी फैन पे लग रही है इन परसेंटेज। और वो क्या तरीका है हमारे पास, मैं यहाँ पर यूज करने लगा हूँ, बड़ा आसान तरीका है। जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ पंप पे कितनी लग रही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। वो मैं कैसे निकालूंगा कि पंप पे परसेंटेज में ना हमने वेटेज देखनी है कितनी है। तो अगर मैं लेबर की बात, क्योंकि हमने लेबर के हिसाब से फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन करना है, तो वो है लेबर कितनी है जी, 150,000, राइट, इतनी लगी हुई ना। जो पंप पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो 1,50,000 है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा जितनी टोटल है, टोटल कितनी है 220,000, ठीक है ना, ऊपर दी हुई टोटल डायरेक्ट लेबर, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ताकि पता चल जाए कि कितनी परसेंटेज लग रही है इसकी, और वही परसेंटेज हम फिर फिक्स कॉस्ट पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास अब कितना आ रहा है जी, मैं इसको अगर कैलकुलेट कर लूँ यहाँ से, ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है। तो 1,50,000 डिवाइड कर दूंगा ऐसे 2,20,000, ठीक है जी, ये ऐसे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 68.18%, ठीक है। तो मैं यही ले लेता हूँ ऐसे ही यहाँ पर, कि इसका 68.18% हमने पंप पे निकाल लिया। इसी तरह वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन चलें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं जो फैन है उसका भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की निकाल लेता हूँ कि क्या परसेंटेज आ रही है। तो पंप पे कितनी डायरेक्ट लेबर लग रही है, 70,000 आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। मैं इसको भी डिवाइड करूंगा टोटल से, टोटल है 2,20,000, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज ना कि कितनी लग रही है, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे। तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है, वो आप आंसर देखें कि कितना आ रहा है, कि 70,000 को हम अगर 2,20,000 से डिवाइड करें, यही मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, 70 डिवाइडेड बाय 2,20,000, 2,20,000 ही है, और इंटू मैंने कर दिया 100, ठीक है। तो ये आंसर आ 31.81, यानी कि 31.82 भी मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है जी। तो 31.82 वही, बाकी रिमेनिंग जो था ना वो यहाँ पर आ गया, आपको नजर आ रहा है कैसे, ठीक है। अब हमने यही अप्लाई करना है फिक्स कॉस्ट पे, हमने निकाल लिया ना, मकसद यही था हमारा, हमने ये इनकी परसेंटेज निकाली, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं,
हम दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, चार्ज करेंगे पंप और फैन पे ऑन द बेसिस ऑफ जितना के डायरेक्ट लेबर चार्ज हो रही है दोनों प्रोडक्ट्स पे। एक बेसिस हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर पेपर में कह दिया जाए कि डायरेक्ट मटेरियल को बेस बनाएं, तो फिर आपको डायरेक्ट मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऐसे ही करेंगे आप, इस तरह हमने डायरेक्ट लेबर में किया। अगर नहीं कहा जा रहा तो डायरेक्ट लेबर ठीक है। अच्छा, अब हम पंप, ये तो हमने डायरेक्ट लेबर निकाल दिया। अब मैं ओवरहेड को, ओवरहेड हमारे पास मौजूद है, और वो ओवरहेड कितनी थी, ये मौजूद है, ये टोटल ओवरहेड, इसको मैं अपोर्शन करने लगा हूँ, ठीक है, पंप पे और फैन पे। तो लेट्स से करते हैं उसी तरह से कि मैं पहले पंप जो है उसकी ओवरहेड निकाल लेता हूँ। तो पंप की ओवरहेड, अभी हमें ना फर्ज किया हमने ये नहीं किया हुआ, क्या बोला, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये वाला काम अभी नहीं किया हुआ, ये हम अभी करना है। तो मैं बता रहा हूँ ये वैल्यूज कैसे आई हैं, मैं यही बता रहा हूँ ना आपको। तो पंप जो है उस पे कितना लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड ओवरहेड कितनी है ना, 200,000 है। तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, पंप की परसेंटेज कितनी है डायरेक्ट लेबर की, 68.18%। हम 68.18% हमने वही बेसिस इस्तेमाल कर ली जो डायरेक्ट लेबर वाली थी, ठीक है। ये है तरीका इस्तेमाल करने का। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो ये क्या आ गया, 200,000 इंटू 68.18 इंटू 100 ओवर 100, परसेंटेज निकालनी है ना, मैं तो ऐसी आएगी 136,360, 136,360। थोड़ा सा फर्क आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें ना डेसिमल ज्यादा ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राउंड कर सकते हैं। 136,360, ठीक है जी, 136,360। वो आंसर थोड़ा सा फर्क पता क्यों आया है, इसलिए फर्क आया है, ये फर्क हुआ, आपने परेशान नहीं होना, ये वाला आंसर, क्योंकि हमारा आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। इसकी वजह ये है कि वो जो आंसर निकाला है ना, वो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज थी ना वो सारी ली गई हैं। मैंने डेसिमल 2 के बाद 2 डेसिमल के बाद जो है ना मैंने राउंड कर दिया, तो दोनों ठीक है, वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने राउंड किया हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आप पंप का हमने जब निकाल लिया, तो इसी तरह हम फैन को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ कि फैन के केस में हमारे पास क्या है जी, कि 200,000 है। तो अब हम जो बेसिस इस्तेमाल करेंगे वो क्या बेसिस है, वही डायरेक्ट लेबर वाली फैन के लिए 31.82, ठीक है, परसेंटेज हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो अब हम इसको जब इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमारे पास, अगर मैं फार्मूला कैलकुलेटर से इस्तेमाल से करता हूँ, तो ये आ गया जी 200,000 इंटू 31.82 डिवाइडेड बाय 100 मैंने कर दिया है, परसेंटेज है ना 63640, ठीक है जी। ये आ गया 63640। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, आंसर जो है ना वो बिल्कुल सेम नहीं आ रहा, और उसकी वजह वही है कि हमने राउंड ऑफ कर दिया, इधर राउंड ऑफ नहीं किया गया, तो दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। अब जब हमने ये आंसर निकाल लिए ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे आंसर निकल आए ना, आपको पता चल गया कैसे निकालें। हमने फिक्स कॉस्ट अपोर्शन कर दी है, किस बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। अब हम जमा कर देंगे तीनों को, किसको, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, और हमारा ये टोटल कॉस्ट हमारी निकल आई कि टोटल कॉस्ट पंप की कितनी है, आसानी से तो हमें पता चल जाएगा। तो अब अगर मैंने ये निकालना हो कि एक पंप कितने का बन रहा है, तो बहुत आसान है, कैसे, अगर पंप फर्ज किया 10 बन रहे हैं, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा कि एक पंप कितने का, क्योंकि पंप की तो टोटल कॉस्ट पता चल गई। इसी तरह से हम फैन की भी मटेरियल कॉस्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर, अब हम फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमने अपोर्शन की हुई है। तो हमारे पास ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट फैन की, कि फैन की कितनी आती है, और हमने एक फैन की निकालनी है, तो फर्ज किया अगर 20 फैन बनते हैं तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास पर फैन टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। ये है फुल कॉस्टिंग का मेथड, कॉस्ट को एलोकेट करने का, प्रॉफिट सेंटर को या कॉस्ट सेंटर को। जी, कोई किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ ले, एनी क्वेश्चन। सर आपने टोटल ओवरहेड को डायरेक्टली उससे क्यों नहीं मल्टी डिवाइड किया, किससे, क्वांटिटी से? क्वांटिटी से नहीं, क्वांटिटी तो थी नहीं, नहीं तो मैंने ऐसे ही दिखाया है, इसकी जरूरत नहीं है, ये जनरली पूछते भी नहीं है, क्वांटिटी दी नहीं हुई ना, वो तो मैंने ऐसे ही आपको दिखाया है कि आपने कॉस्ट चार्ज कर दी है,
दोनों प्रोडक्ट्स को, पंप और फैन को। तो अब पर यूनिट निकालना भी आसान है, अगर पता हो क्वांटिटी तो हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो चार्ज होगी सारी की सारी, राइट। सर ओवरहेड जो है ये वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, राइट? तो सर इसमें जी, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, बता सकते हैं प्लीज? हाँ, ओवरहेड इंडायरेक्ट कॉस्ट भी इसको भी बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, इसमें आपकी ना डेप्रिसिएशन आ जाती है, इसमें आपका रेंट ऑफ द बिल्डिंग आ जाता है, सैलरीज ऑफ द वर्कर्स आ जाता है, कोई तो आपकी वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि फिक्स अमाउंट है, कि जितनी भी अमाउंट जो कि फिक्स है, जिनका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आप आउटपुट ज्यादा करें, कम करें या ना बनाएं, वो कॉस्ट आपको पे करनी करनी है, वो सारी की सारी ओवरहेड्स कहलाती हैं, या इनडायरेक्ट कॉस्ट आप कह सकती हैं उसको। पेपर में या तो आपको कटी दी होगी, या आपको उनको टोटल करके इकट्ठा लिखना पड़ेगा कि ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, ताकि आप उसको चार्ज कर सकें। ठीक है जी, कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।